कैसे हैं बच्चों? आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में। बोर का जन्म 1885 में हुआ था। अपने जीवन काल में नील बोर ने एटम्स और न्यूक्लियस से रिलेटेड कई पोस्टुलेट्स दिए जो आज भी हमारे लिए कई इम्पोर्टेंस रखते हैं। चलिए आज देखते हैं हम लोग नील बोर के एटॉमिक थ्योरी के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हम लोग बात करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल पे हम लोग देखते हैं क्या है ये बोर एटॉमिक मॉडल। Bohr proposed a model for hydrogen-like atom. He proposed hydrogen-like atom. Hydrogen-like atom. Here we will discuss about the Bohr atomic model. In atomic model, what was the contribution of Bohr? यहाँ पे हम लोग इसी बात को देखेंगे। Bohr proposed a model for hydrogen atom which is also applicable for lighter atom in which a single electron revolves around a stationary nucleus. This is single atom, ये hydrogen like atom के लिए applicable है। Electron revolves around a stationary nucleus of a positive charge Ze. This is Ze. This is positive nucleus and called hydrogen-like atom. This is applicable for hydrogen-like atom or atom of lighter weight. Bohr model is based on the following postulates. He postulated that an electron in an atom can move around the nucleus in a certain circular stable orbit without your emitting radiation. यानी यहाँ पर जो स्टेटमेंट में जो मुख्य बात ये बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन विल revolve around a certain orbit and with fixed energy. The model is based on the following postulates. He postulated that an electron in an atom can move around the nucleus in certain circular stable orbits. This is fixed orbit of fixed electron and without emitting radiation. Bohr found that magnitude of the electron and angular momentum is quantized. Angular momentum, the symbol of angular momentum is L and this is mvr, and here that is m तो m को तो हम फिक्स रखते हैं यहाँ vn and rn for nth orbit. तो nth orbit के लिए ये क्या होगा, this is n and h by 2 pi. H is what? H is here Planck's constant. This is here Planck's constant. And here Rn is radius of nth orbit. Rn is radius of nth orbit and Vn is corresponding speed. Vn is corresponding speed. The radiation of the energy occurs only when an electron jumps from one permitted orbit to another. When electron jumps from higher orbit, that means E2, higher orbit E2 to lower orbit E1, that is higher orbit, let this is higher orbit and this is lower orbit. That means you can say here when an electron jumps from higher orbit to lower orbit, then the difference of energy, and this difference of energy is what? Here E2 minus E1. E2 minus E1 emits in the form of photon. But if electron gets from E1 to E2, it absorbs the same amount of energy. Atoms. यहाँ पर हम लोग देखते हैं, let this is here L angular momentum, this is vector and electron is moving in this direction.
and this is here let nucleus, and this is the mass of electron, and this is here velocity v, and this is mass, and charge on electron is e minus 1. Let this is moving. Radius of the orbit. For an electron around a nucleus, the electrostatic force of attraction provides the necessary centripetal force, and here centripetal force is, this is Fc, and here nuclear your electrostatic force is here Fe. that means you can equate, तो ये आपके पास आ जाएगा mv²/r, this is centripetal force, and here electrostatic force is here Ze, this is first charge and this is second charge by 4 pi epsilon naught, और ये आपके पास क्या आ गया r². तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं, एक और इक्वेशन है हमारे पास. अब वो क्या है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है L इज इक्वल्स टू mv/r, और हमारे पास जो ऑर्बिट है वो क्वांटाइज्ड है और इसी फॉर्म में होगा, दैट मीन्स nh/2 pi you can write. This is equation 2. A hydrogen-like atom consists of tiny positive charge nucleus and an electron revolving in stable circular orbit around the nucleus. Let this is hydrogen-like atom. तो hydrogen-like atom है, this is positive Ze, this is Z, this is E, and this part is here nucleus. This is nucleus, and electron is moving on this orbit, and here this is the velocity, direction of velocity. Let E, M and V. E क्या हो गया? E is charge, M is the mass, and V is the velocity of electron. ये इलेक्ट्रॉन का क्या है? चार्ज है, वेलोसिटी है और मास है रिस्पेक्टिवली. द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज Ze. पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज Ze. पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज, वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर. यहाँ पर Z क्या है? Z इज एटॉमिक नंबर. मान लिया ये एटॉमिक नंबर है. In case of hydrogen like atom, in case of hydrogen like atom, Z कितना होगा? Equal to 1 होगा. As the centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction, इन दोनों के बीच जो electrostatic force है, this force creates the centripetal force. तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम इससे इक्वेट करते हैं, तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स दैट मींस Fc इज इक्वल टू mv²/r. दिस इज इक्वेशन 1. एंड F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज Ze into E divided by 4 pi epsilon naught into r². This is equation 2. Now from the second postulate, the angular momentum of the electron, एंगुलर मोमेंटम, ये तो था बोर मॉडल का फर्स्ट पॉस्टुलेट कि ये दोनों बैलेंस्ड होगा, एंड सेकंड पॉस्टुलेट्स कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, वेयर n इक्वल्स 1 2 3 4. दीज आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है. इन दोनों इक्वेशन को हम एक कर सकते हैं बिकॉज Fc इज इक्वल टू Fe. तो Fc Fe के इक्वल है, दैट मीन्स यू कैन राइट mv²/r इज इक्वल टू Ze² डिवाइडेड बाई 4 pi epsilon naught r². तो एक इक्वेशन ये है आपके पास, और दूसरा इक्वेशन है एंगुलर मोमेंटम का. ये एंगुलर मोमेंटम का दूसरा इक्वेशन. नाउ यूजिंग दिस टू इक्वेशन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ r. हियर यूजिंग दिस टू इक्वेशन, इक्वेशन 1 mv²/r
is equal to ZE square by 4 pi epsilon naught R square. And second equation mvr equals nh by 2 pi. Here h is Planck's constant. h क्या है? Planck's constant. ये Planck's constant है. तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ r. ये जो r का वैल्यू आ गया n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई m z e स्क्वायर. तो यहाँ पे देखेंगे n स्क्वायर को छोड़कर रेस्ट ऑल टर्म्स आर कांस्टेंट. दिस इज कांस्टेंट टर्म. तो ये कांस्टेंट टर्म है, दैट मींस बोल सकते हैं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. जो रेडियस होगा वो नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा. दिस इक्वेशन फ्रॉम द रेडियाई ऑफ द परमिटेड ऑर्बिट्स. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इफ n इक्वल्स टू n आपका क्या है 1 2 3 4 like this, then your permitted orbit increases the ratio and this is here permitted orbits का ratio जो हो जाएगा 1:1 जो हो जाएगा, फिर 4:9:16 ये जो होगा उसका स्क्वायर होगा from first orbit. Clearly stationary orbits are not equally spaced. Bohr radius. The radius of the first orbit, for first orbit n equals 1 of hydrogen atom. तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमने क्या लिया है z equals 1 will be. तो जो आपके पास फॉर्मूला डिराइव हुआ था उसमें n की जगह हम क्या पुट करेंगे 1. तो दिस विल बी h स्क्वायर, दिस इज एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एंड दिस इज m e स्क्वायर. दोनों वैल्यू को हम 1 1 पुट करेंगे, z की जगह भी 1 और n की जगह भी 1. स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर. That means this value is constant, and after putting the value of h epsilon naught pi m e, h Planck's constant, epsilon naught permittivity, pi का value put कीजिए mass of electron and charge of electron, you will get this value is 0.53 angstrom. Since r is directly proportional to n square, the radius of second orbit of h atom will be here r is equal to 4 into this is 0.53 angstrom. This is, and third orbit, for third orbit will be r2 के लिए ये था, थर्ड ऑर्बिट के लिए कितना हो जाएगा 9 into 0.53 angstrom. ये हम लोग लिख सकते हैं. तो ये किसके लिए था, ये सेकेंड ऑर्बिट के लिए. दिस इज फॉर थर्ड ऑर्बिट एंड दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्बिट. फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लिए वैल्यू जो होगा रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड द बोर रेडियस. इसी को हम क्या कहते हैं, बोर रेडियस कहते हैं. दिस इज बोर रेडियस एंड दिस इज कांस्टेंट. ये वैल्यू हमारा क्या है, कांस्टेंट है. आफ्टर बोर रेडियस we are going to find velocity of electron in stationary orbit. तो स्टेशनरी ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को फाइंड आउट करने जा रहे हैं. We can obtain formula for velocity of electron in permitted orbits from equation 2. तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था, तो इक्वेशन 2 जो हम लोग लिखे थे दिस इज mvr is equal to nh by 2 pi. तो ये बता रहा है कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. तो यही आपका रेस्ट्रिक्ट कर रहा है ऑर्बिट को. हियर यू कैन राइट v इज इक्वल टू व्हाट, तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो v इक्वल्स टू लिख सकते हैं nh, और बाकी यहाँ पर क्या किया m और r को हम यहाँ नीचे भेज दे रहे हैं. तो नीचे भेजने पे क्या हो गया, दिस इज mr, दिस इज, एंड पुटिंग दिस वैल्यू यू कैन गेट, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ r. तो आपके पास जो वैल्यू आ रहा है इसको हम कहाँ पुट कर देते हैं, इस पहले वाले इक्वेशन में. दिस इज द इक्वेशन फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम एंड दिस इज हियर nh by 2 pi. फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड v. m r को हम क्या किए, नीचे भेज दिए. तो देखिए दिस इज nh by 2 pi m r. ये आपके पास फॉर्मूला आ गया. और हमारे पास जो एक प्रीवियस रिजल्ट था जिसको हम लिखे थे r इक्वल्स n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट
डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आया था पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आया था। नाउ पुट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हम उठाकर कहाँ रख देंगे, इस आर के जगह पे रख देंगे। तो इस आर के जगह पे वैल्यू रखेंगे तो ये आपका क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा आपका इस तरह से कुछ, दिस इज एन एच बाई 2 पाई एम और आर, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स दिस इज पाई एम जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास वैल्यू आ गया। एम एम कैंसिल आउट, एच स्क्वायर से एक एच कैंसिल, और उसके बाद आपके पास पाई से ये पाई कैंसिल, दैट मीन्स योर फाइनल रिजल्ट इज हियर एन, और एन से हम एक एन को कैंसिल कर देंगे, तो ये आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है दिस इज जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 n h epsilon naught. This is V equals Z E square 2 n h here into epsilon naught. तो यहाँ पर हम this equation here except n everything is constant, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/n and into this is Z E square divided by 2 pi 2h epsilon naught 2h epsilon naught and this is here constant. It is inversely proportional to n, that means the graph between velocity and number of orbit is here inversely proportional to, जैसे जैसे n बढ़ेगा तो velocity आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। It shows that velocity of electron is maximum in lower orbit, that means at n equals to 1 velocity is maximum, here v is maximum, and goes on decreasing in higher orbit. The velocity of electron in the first orbit, that means at n equals to 1 for hydrogen like atom, that means z equals to 1, that means hydrogen like atom, इसको हम evaluate कर सकते हैं, this is v1 and putting the value z equals to 1 and n equals to 1 you will get this is e square divided by 2h and this is epsilon naught, and here this is equal to c by 137 and c is what, c is the speed of light, this is speed of light and this is here 3 into 10 to the power 8 meter per second. Here let us see frequency of electron in stationary orbit. What will be the frequency? Frequency represented by small v, and frequency is the number of revolution completed per second, number of revolution per second. This is the reciprocal of time period, इसको हम time period का reciprocal भी बोल सकते हैं, and here velocity is equals to v equals to omega into r. What is omega? Omega is equal to 2 pi v into r हम लिख सकते हैं, this is omega को हम क्या लिखे, 2 pi v, टाइम पीरियड के टर्म्स में लिखेंगे तो दिस इज 2 pi by t into r, this is here omega. ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा जो कि आपका एंगुलर वेलोसिटी है, एंड दिस इज 2 पाई v और 2 पाई बाई t. v is frequency and t is here time period. That means you can write here v frequency is equals to, that means you can write v is equals to, आपके पास रिजल्ट है v को इससे इक्वेट किए तो दिस इज इनटू r, तो आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय 2 पाई r, एंड योर वेलोसिटी, इससे जस्ट पहले हमने देखा था वेलोसिटी के लिए आपके पास फॉर्मूला आया था, वो आया था z v इक्वल्स टू z e स्क्वायर, अभी जस्ट आपके पास 2h एप्सिलॉन नॉट n,
दिस इज द वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h एप्सिलॉन नॉट n इनटू दिस इज 2 पाई एंड दिस इज r। ये आपके पास वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये वैल्यू v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू है जेड ई स्क्वायर बाई 2 पाई 2 कितना हो गया 4 और दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस चीज को हम k से रिप्लेस कर सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं जेड ई स्क्वायर एंड दिस 2 इंटू 2 4 एंड दिस इज पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज h n एंड दिस इज r। तो इसको हम k के टर्म्स में भी लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो ये आपके पास आ जाएगा k जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई n h n एंड r दिस इज। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गया और ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है जिसको हम k के टर्म्स में भी लिख सकते हैं या फिर पाई और एप्सिलॉन नॉट को भी टर्म्स में लिख सकते हैं। Let us see energy of electron in stationary orbit. The energy E, here energy E of electron in an orbit is the sum of kinetic and potential energy. Here energy of an electron in stationary orbit. Energy means here mechanical energy, that means kinetic plus potential energy. And here from a previous equation you can write mv square is equal to ze square डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आपको पता है। नाउ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ ऑफ दिस वैल्यू। तो ये वैल्यू आ जाएगा जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। नाउ substituting the value of r for r in equation this we can get kinetic energy। अब r के वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे n के टर्म्स में यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा m जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड h स्क्वायर हियर इनटू 1 by n square। Kinetic energy is half mv square and half of this value ze square by 8 pi epsilon naught r and the value of r from first equation बोर एटॉमिक रेडियस के फर्स्ट इक्वेशन में हमने ये निकाला था वैल्यू। अब इसको हम यहाँ पुट करते हैं तो r को जैसे ही पुट करेंगे इट विल बी रेसिप्रोकल। तो ये आपके पास रेसिप्रोकल हो जाएगा जे स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, दैट मीन्स दिस इज पाई m जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स योर वैल्यू विल बी, अब देखिए पाई पाई कैंसिल आउट, ये आपके पास कैंसिल हो गया एंड रेस्ट ऑल टर्म विल बी हियर। तो दिस इज जेड ई टू द पावर 4 ई स्क्वायर जेड ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर भी हो गया ये एंड दिस इज जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो गया h स्क्वायर एंड n स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो गया जिसमें हम लोग क्या किए, इस r को पुट किए। तो ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू कहाँ से आया है, इसको एक बार रिमाइंड कर लीजिए। ये प्रीवियस वीडियो को पीछे जाइए थोड़ा सा तो ये आपको इक्वेशन दिखाई देगा। तो इसी इक्वेशन को हमने यूज किया है यहाँ पर। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करने के बाद दिस इज द वैल्यू ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी। हियर वी नो दैट द वैल्यू ऑफ me4, m इलेक्ट्रॉनिक मास, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, लाइट का स्पीड, प्लैंक कांस्टेंट, क्यूब, यहाँ ध्यान देंगे क्यूब, दिस इज इक्वल टू r, इसको हम r लिखते हैं। एंड व्हाट इज r? r इज रेडबर्ग कांस्टेंट, r इज हियर कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज रेडबर्ग कांस्टेंट।
तो इस वैल्यू में हम अगर ऊपर नीचे इसको हम अगर एच सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, दैट मीन्स हियर me4 8 epsilon naught square ch cube, ये वैल्यू आ गया. दैट मीन्स दिस इज हियर rhc डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू है दिस इज हियर n स्क्वायर, ये n स्क्वायर ले लिए और z को हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 ले लेते हैं. लेट z इज हियर 1, तो z 1 है तो ये आपके पास वैल्यू आ गया रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स rhc by n square. Now the potential energy of electron in an orbit of radius r due to electrostatic attraction by the nucleus is given by, अब उसको भी कैलकुलेट करते हैं. Now here kinetic energy in terms of Rydberg constant is r h c divided by n square, and where r is equal to here m e to the power 4, जो कि अभी पहले वाला रिजल्ट था आपका 8 epsilon naught, here this is epsilon naught to the power whole square. Now here kinetic energy of electron is rhc by n square, and here r is Rydberg constant which is equal to m e to the power 4 8 epsilon naught whole square h cube into c. Now the potential energy of electron in an orbit of radius r will be here due to electrostatic attraction by nucleus, and this potential energy is equal to 1 by 4 pi epsilon naught and into ze into minus e divided by here r, ये वैल्यू आएगा. अब ये पोटेंशियल एनर्जी आपका वैल्यू कितना है, नेगेटिव है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है. इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू कैन ऑल्सो राइट, इस पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो ये आपके पास कितना होगा, दिस इज माइनस 2 आर एच सी, minus 2rhc divided by n square. This is in terms of potential energy, ये सॉरी रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में है. अब ये क्या करते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एनर्जी हियर, टोटल एनर्जी को हम लिख ले रहे हैं दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, सम करते हैं. तो इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास या तो आप लिख लीजिए रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगा आर एच सी बाई एन स्क्वायर माइनस 2 आर एच सी डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर. तो ये वैल्यू कितना आएगा, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस आर एच सी डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर. That means total value is negative of RHC by n square. If अगर आप इसको रेडबर्ग कांस्टेंट के नई टर्म्स में नहीं निकालना चाहते हैं तब आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा टोटल एनर्जी. अगर इसमें से माइनस साइन हटा दे तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था, इससे पहले आप वीडियो में देखे होंगे, जस्ट इससे पहले ही कहा था. तो ये हमने देखा कि दिस इज टोटल एनर्जी. पास जिस तरह का न्यूमेरिकल रहेगा उसी तरह के फॉर्मूला को हम यूज करेंगे. दैट मींस यू कैन से हियर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ये काइनेटिक एनर्जी था, माइनस हटा देंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन था, जस्ट इससे पहले हमने देखा है. और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को सम करने पे ये आपके पास वैल्यू आ गया एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू 1 बाई एन स्क्वायर. m क्या है आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मास, एटॉमिक नंबर, जेड ई जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, h प्लैंक्स कांस्टेंट. हियर यहां पर हम देख रहे हैं कि n के वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, n इंटीग्रल वैल्यू है n 1 2 3 लाइक दिस, ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. n को चेंज करते जाएंगे, यू विल गेट
the total energy will change. For hydrogen like atom, Z equals to 1. हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या करेंगे? For hydrogen like atom, Z is equal to 1 हमको रखना पड़ेगा. Substituting the value, अगर आप Z को 1 रख देंगे तब आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको पुट करेंगे, n को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कांस्टेंट है. Now here energy of electron in a stationary orbit का आपके पास जो फॉर्मूला आया वो ये है. अभी जस्ट जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए वो आपके पास ये है. इसमें हम लोग इस वैल्यू को 1/n² को छोड़ दे तो रेस्ट एवरीथिंग इज कांस्टेंट. m इलेक्ट्रॉनिक मास, z हम 1 ले लेंगे. z अगर हम 1 ले ले हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम देखिए हीलियम प्लस लिथियम 2+, तो z अगर 1 ले ले and this is electronic charge, permittivity, h, Planck's constant. इन सब वैल्यू को अगर हम कांस्टेंट को ले लेते हैं तो आपके पास एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा माइनस और m(e)(m)z²e⁴ 8 ε0² h², इन सब का वैल्यू जो आएगा -13.6 एंड दिस इज 1/n². तो ये आपके पास वैल्यू आ जा रहा है -13.6 n/n², and this is your value is here electron volt. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में ये वैल्यू है. नाउ अब हम देखते हैं एनर्जी डिफरेंस. एनर्जी डिफरेंस का मतलब हो गया कि किसी भी ऑर्बिट से, मान लिया अपर ऑर्बिट से लोअर में अगर आ रहा है या लोअर से अपर में जा रहा है तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा. तो एनर्जी डिफरेंस E2 - E1 n1² minus n2². रेस्ट एवरीथिंग इज कांस्टेंट हियर. बाकी ये जो टर्म है हमारा क्या है, वो कांस्टेंट है. तो हम इस कांस्टेंट टर्म को बाहर रखते हैं. तो हियर एनर्जी के लिए आपके पास ये भी फॉर्मूला है E = hv. ये भी फॉर्मूला है. h क्या है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट. v इज फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं E2 - E1/h = फ्रीक्वेंसी. तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया. और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें एक एक्स्ट्रा h है. तो ये जो एनर्जी में h से डिवाइड किए तो h³ बन गया. उसके बाद देखिए 1/λ. 1/λ को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज वेव नंबर. 1/λ इज कॉल्ड वेव नंबर. दिस क्वांटिटी इज वेव नंबर. तो हम देख रहे हैं कि h जो है h³ बन गया. एंड 1/λ को हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी बाई वेलोसिटी. हियर वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो हम c से इंटू कर दिए. नाउ दिस टर्म, ये जो टर्म है आपके पास ये r है. r इज रेडबर्ग कांस्टेंट एंड r इज इक्वल टू हियर 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर. और r का वैल्यू क्या है, m(e⁴/8 ε0² c(h³). अब क्या करते हैं, 1/λ यहाँ पर आपके पास z² है. और स्पेशल केस ले लेते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए. दिस इज H लाइक एटम. तो H लाइक एटम के लिए Z हो गया 1. तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया 1/λ = R 1/n1² - 1/n2². तो ये हो गया वेव नंबर का फार्मूला. ध्यान रखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं एग्जाम में. 2014 में देख लीजिए, 2013, 2012, 2011 के पेपर को उठाकर देख लीजिए आप सीबीएसई बोर्ड का. इसमें लगातार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे. इस फॉर्मूला से देखिएगा कि कैसे कन्वर्ट करके हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं. तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग इस पे न्यूमेरिकल पर भी प्रैक्टिस करेंगे. हियर क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर. ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का, उसी को हमने उठाया है. Students, rest of the lecture will be in next video. Keep watching. Thank you.